آنکھوں کو بند کریں گے، قرآن کی ذمہ اکبر سے دعا کریں گے، اپنی دعا کا آغاز کریں گے۔ قدوس قدوس ہے خدا باپ، نے شکر ادا کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخش دی ہے، تاکہ آج ہم تیرے گھر میں جمع ہو سکیں، تیرے نام کی حمد و ثنا کر سکیں، تیرے نام کے روز جلال دے سکیں۔ اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے شکر اولاد ہے جو جہاں سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن تیری محبت تیرا پیار ہے جو تم نے آج تک ہمیں زندگی اس زمین پر زندہ رکھا ہے۔ میں تیری بڑی شکر گزاری کرتی ہوں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں آج جتنی زندگیاں تیری حضوری میں موجود ہیں، آ چکی ہیں، ایک نے سب کچھ چننا، نام بنا، برکت دینا، بلیس کرنا، اور ایک میں دعا کرتی ہوں جتنی زندگیاں تیری حضوری میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے، اگر چاہتے ہیں ان کے راستے رکاوٹوں کو دور کرنا، تاکہ آج میں تیرے گھر میں آ کے تیرے گھر سے بلیسنگ حاصل کر کے جانے والے بن سکیں اور تیرے نام کی حمد و ثنا کرنے والے بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں بیت کے لیے وہ ہے کہ تیرے پاک اور مشوانے کو ہے کہ رسول ساتھ ہو، واضح ساتھ ہو، ساتھ میں آج کثرت کے ساتھ استعمال ہو سکے، تیرے پاک خاص شہزاد طرف سے میں گر رکھے۔ ایک میں دعا کرتی ہوں تیرا پاک چاروں طرف سے یہاں پہ جنبش کرے اور بہت سی یہاں پہ بلیسنگ پر اندر ٹوٹے اور بہت سی زندگیاں یہاں سے برکت حاصل کر کے جانے والے بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں تیرے کالم کے لیے، تیرے کالم کو تیرے پاک اور منچ پاتی ہوں، اپنے کالم کو چنا اور بلیس کرنا۔ ایک میں دعا کرتی ہوں جب وہ ہم سے کلام ہو تو وہ ہمیں قدوس میں بولنا سننے والی زندگیوں کو سنن جاتی زندگی پائیں، اسی کلام کے اس کے اصل اور ساتھ بھی سبن میں بلکہ جو گنا قلم کے کار بن سکے۔ ایک میں دعا کرتی ہوں سب کو چنا اور بلیس کرنا۔ ایک میں چرچ ملی کا تیرے پاک اور منچ پاتے چرچ ملی کو چھو اور بلیس کر، اور ایک میں دعا کرتی ہوں پاکستان میں جہاں جہاں باتیں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، ایک میں سب کی بڑی بات نگہبانی کرنا، سب کو چنا اور بلیس کرنا۔ ایک میں دعا کرتی ہوں پاکستان میں جتنے خادمین ہیں ایک میں سب کی بڑی بات نگہبانی کرنا، سب کو چنا اور بلیس کرنا۔ ایک میں دعا کرتی ہوں آج کی اس میٹنگ کے لیے، ایک میں دعا کرتی ہوں آج جتنی بھی پریسیس ہوئی ہے سب تیری مرضی کے مطابق ہو۔ ایک میں دعا کرتی ہوں تیرا پاک چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رکھے، چاروں طرف سے آج تیرا پاک یہاں پہ جنبش کرے اور بہت سے لوگ یہاں سے بلیسنگ حاصل کر کے جانے والے بن سکیں اور تیرے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں آج جن لوگوں نے درخواست تیری حضوری میں دے رکھی ہیں، ایک میں ان کی درخواستوں کو پورا کرنا۔ ایک میں دعا کرتی ہوں آج کی اس میٹنگ کے شروع سے لے کر آپ تمہارا ساتھ دینا، آمین۔ آہستہ سے اپنے نام سے نام کو نگران دیں گے اور پرسش کرتے ہوئے دور کہیں گے کیسے ہیں یہ ہوا نے یاد دے دے چھوڑا کیسی سے ہونی یا ہوا نے لیا دی جل چھڑا، کیسی سے ہونی یا ہوا نے لیا دی جل چھڑا،
आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध में आगे बढ़ते सूर्य 148 कहेंगे करो रब दी हुक्मड़ी ऐसा भी आसमाना दी हुक्मड़ी करो रब दी हुक्मड़ी आए करो रब दी हुक्मड़ी आए सबे आसमाना दी उसे आए सबे आसमाना दी उसे आए सारी सारी करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर सारी करन बड़ी से सारे सारी करन बड़ी से सारे मौजिया मौजा मारने हारे मौजिया मौजा मारने हारे सारी सारी करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर सच सूरज चमकीले तारे सच सूरज चमकीले तारे सबे आसमान से पानी सारे सबे आसमान से पानी सारे सारी सारी करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर औसने हो कम की साजारी औसने हो कम की साजारी कल कज पैदा आई सारी कल कज पैदा आई सारी 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 करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर हौसले मजबूत बनाए हौसले मजबूत बनाए साजो कुछ भी टल ना जाए साजो कुछ भी टल ना जाए सारी सारी करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर करो सारी सारी करो बुलंदी पर हालेलुया। ऐसे ऐसा सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के सामने आगे बढ़ते दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे बेटी रिक्शा के साथ के नाम पर जला देंगे और प्रसिद्ध में आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध में आगे बढ़ते गीत गाएंगे। एक ताज बना के प्रसिद्ध का तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के प्रसिद्ध का तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के प्रसिद्ध का तेरे सर पे सजाते हैं। नई नस्ल मेरी नई नस्ल मेरी नई
हालेलुया। आइए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को जलाल देते हुए गीत है ईमान नाल देखते हुए यीशु नजर आएगा, दिल में तेरे आपे आन समाएगा। सब मिलकर गाएंगे खुदा के नाम को जलाल देते हुए। ईमान नाल देखते नो यीशु नजर आएगा, ईमान नाल देखते नो यीशु नजर आएगा, दिल विच तेरे आपे आन समावेगा। हालेलुया।
ईमान नाल वेखदे नो यीशु नजर आवेगा, दिल विच तेरे आपे आन समावेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। تو ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ برکت ਨੂੰ نصیب کریں گے کہ عرشوں سے پھر مسیحا دنیا میں آئے گا، دھرتی پہ آ کے رب کو اپنا لگائے۔ عرشوں سے پھر مسیحا دنیا میں آئے گا، عرشوں سے پھر مسیحا دنیا میں آئے گا، عرشوں سے پھر مسیحا دنیا میں آئے گا،
सब को झुकाकर उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो जोर में बढ़कर खुदा है, जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता है और जो मुर्दा हड्डियों के अंदर जान डालता है, जो कहता है 4 दिन के मुर्दा लाजर से कि ऐ लाजर उठ कब्र से बाहर हो, तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। आए उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो जोर में बढ़कर खुदा है, जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता है, जो मुर्दा हड्डियों में जान डालता है, जो कहता है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, जो कहता है कि मेरे खोले में तो कोई बांध नहीं सकता और बांधे में तो कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि वही अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, और वही कहता है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जमात में से जिसको खुदा का पाक रूह पाता है वो दुआ में रहनुमाई करे। बहनों में से, भाइयों में से जिससे खुदा का पाक रूह पाता है वो दुआ में रहनुमाई करे। इस्राएल के बादशाह का शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। जिंदा खुदावंद तू जो कादिर मुक़द्दर खुदा है, तू वफादार है और यहोवा पाक खुदा है। हम तेरे नाम के आगे झुक जाते हैं, तुझे सजदा करते हैं। इजराइल के बादशाह ने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों के अंदर बख्श दिया और पाक खुदा को ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके तुझे मुबारक कहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। पाक खुदा इस वक्त जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आ चुकी हैं, सारे लोगों मैं खुदा देगी कि जिंदगी के लिए तुझसे बरकत को मांगती हूँ, क्योंकि तू बरकतों का मालिक है, तू बरकत देने वाला खुदा है, क्योंकि यहोवा शरी है, तू कहर करने में धीमा, शक्कर में गनी और वफादार है। जलाल के बादशाह आज तेरे शक्कर वाले हाथ को खुदा तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर मांग लेती हो और पाक खुदा जब तक तेरे लोग तेरी हजूरी में झुके रहे, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से तेरे लोग जमा है, तो खुदा तो अपने आसमान को खोले रखना और जिंदा खुदा देखे तो जिंदगी की हिफाजत करना, निगहबानी करना। आज तो अपने खातों को कसरत के साथ आपके शोले बनाकर इस्तेमाल करना खुदा, ताकि तेरे नाम से, तेरे जिंदा कलाम की आवाज से खुदा तेरे लोग बहुत सी जिंदगियों को जीतने वाले हो खुदा। आज तो अपने जलाल को खुदा जाहिर करना, आज खुदा तेरी रूही और कसरत के साथ खुदा देख एक जिंदगी के अंदर काम करे खुदा। पाक खुदा आज का कलाम खुदा देख एक जिंदगी को छू जाए, आज के कलाम के वसीले से जिंदगियां तब्दील हो, आज की प्रस्तश के वसीला से खुदा बंधन और जुए यीशु नाम से टूट जाए और खुदा पाक खुदा जितनी जिंदगियां ते प्रस्तश में आके बड़ी है खुदा पाक खुदा, उनके लिए तुझसे बरकत को मांगती हूँ, उनके घरों को छूना, मस्सा करना, ताकि खुदा पाक खुदा वो रूह के साथ, सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तश करे और प्रस्तश का खूबसूरत ताज बढ़ा के तेरे सर पे सजाए मेरे पाक खुदा। जलाल के बादशाह आज तो जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, आज तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे मेरे पाक खुदा। आज तुमने यह काम करना, अपने खादम को खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करना, तेरे बंदा की सलामती के लिए तेरी शुक्रगुजार हो कि पाक खुदा तूने अपने बंदा को सलामती से रखा और खुदा पाक खुदा उसे अपने घर में सलामती से लाया मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। आज खुदा बंधनों को तोड़ना, झूमों को तोड़ना और जलाली काम करना, यीशु जी के नाम से आमीन। आमीन। आइए प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देते हुए गीत है आगे आते यीशु मैं द्रोहियों ना आगे आते यीशु मैं द्रोहियों ना आगे आते यीशु मैं द्रोहियों ना मैं द्रोहियों ना मैं द्रोहियों ना आगे आते यीशु मैं द्रोहियों
इस तरह से हम खुदा के नाम को जला देंगे और फिर अपने स्टेज में आगे बढ़ेंगे। अपने स्टेज में आगे बढ़ते ही गीत गाएंगे, उठ जाना बिछा मामा जैसे नाली सोते जामा। उठ जाना बिछा मामा दे असी नाली सोते जावांगे, असी नाली सोते जावांगे। उठ जाना बिछा
करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे और हम दुआ के साथ मिलकर कोर्स करेंगे और उसके दरमियान अपने आप को कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में गवाही से बनकर कलाम ठहरे। इस कलाम के वजह से हम 60% तो नहीं बल्कि 100 कलाम पढ़ने के काबिल बन सकें। आए हर एक जिंदगी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उस यहोवा खुदा से अपने लिए बरकत मांगना शुरू करें। क्योंकि जब हम ईमान के साथ अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं और खुदा से मांगते हैं तो मेरे अज़ीज़ों वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि वो हमारी झोलियों को खुशियों से भर देता है। दुख जीवन से भाग जाता है, दुख जीवन से भाग जाता है, जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, दुख जीवन से भाग जाता है, दुख जीवन
आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए उस यहोवा खुदा से आज कलाम की बरकत को मांगे और कहेंगे खुदावंद आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, लश्करों के खुदा, जिंदगी देने वाले खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, विद्या देने वाले खुदा, क्योंकि तूने अपना बेशकीमती खून बहा के हमको खरीद लिया। आज हम खुदा तेरे खून से खरीदे हुए तेरे लोग, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, तू हमारा अच्छा चरवाहा है। पाक खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं कि तू अपने भेड़ों की रखवाली करता है और जिंदा खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए, गुजरे हुए हर लम्हा के लिए, जितनी भी हमने परस्तिश की खुदा उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और जिंदा खुदा इस वक्त तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ और खुदा पाक खुदा तेरे बंदा के मुंह में आज जो भी तेरा कलाम है, तेरी जिंदा आवाज है खुदा, जब वो आवाज तेरे लोगों की जिंदगियों तक पहुंचे तो एक एक जिंदगी शेर और असुदा हो मेरे पाक खुदा, एक एक जिंदगी तुझ पर ईमान लाए, एक एक जिंदगी आज के कलाम के वसीला से तब्दील हो मेरे पाक खुदा। और जिंदा खुदा तो जलाली काम कर रहा और बड़ी बरकत देना, जब तक तेरा बंदा तेरे मज़बा पर रहे तो खुदा तो अपने बंदा की हिफाजत करना, निगहबानी करना, अपने पाक हाथ को अपने बंदा पर बढ़ाए रखना। और जिंदा खुदा उसके मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज मुझसे भी अल्फाज हो, हर अल्फाज हमारी जिंदगी को छू जाए मेरे पाक खुदा, तो जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियां। आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा ने ये मौका बख्शा कि हम उसकी पाक रसूली में, हालेलुया। आज बेशक गर्मी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा टाइम हम जल्दी खत्म कर लें, लेकिन कोई नहीं, खुदा की हजूरी में ये भी बेहतर है, थोड़ा सा मैं मेहनत के साथ भी खुदा के साथ चलना। तो ये है कि खुदा बरकत दे। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी हम 14 से 22 आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और ये हर साल की तरह ये मैसेज है, बड़ा खूबसूरत है और इस मैसेज को मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि और भी इस कलाम के अंदर इस जैसे बड़े मैसेज हैं, लेकिन ये अल्फाज जो है ये बड़ी आसानी के साथ हर बंदे के जहन में नशी होने वाले और समझ में आने वाले अल्फाज है।
क्योंकि बाकियों को जो है वो कुछ हमें भी मेहनत करनी पड़ती, फिर समझने वाले को भी अपना ज़हन इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस हवाले के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर कलाम खुदा के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं, अगर हम सादगी में भी उसे पढ़ें तो फिर भी वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले साल कुर्बानी का गोश्त खाया? खुदा के घर में बैठे हैं, तो ये है कि खुदा के सामने इकरार करना, मेरे सामने नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात, जोरदार तालियां खुदा के जवाब। सभी लोग जो है वो खुदा के साथ रफाकत में है, इसीलिए हम ऐसे बेदीनी के कामों से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बेदीनी के कामों को छोड़कर अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, ताकि हम खुदा की बादशाही के लायक ठहर सके। तो मेरे साथ निकाले पहला करंथियों। हालांकि आप लोगों ने सुनना होता है, हमने सुनाना होता है। तो सुनाने वाले जो है बाज़ दफ़ा जो है ये जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो ये ओपनली इसको लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो हालांकि हमें इस बात से डरना चाहिए कि कोई हम पर आंख ना बुरी आंख से ना देखे या अपनी उंगली जो हमारी तरफ ना उठाए, लेकिन हम सुनाने वाले दिलेरी के साथ सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाले उस पर अमल नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि अगर ये कलाम इनके पास ना पहुंचता, ये ना सुनते, तो फिर तो ये बेकसूर थे, लेकिन जब इन्होंने सुनकर इस पर अमल ना किया तो आखिरी रोज ये कलाम इन्हें मुजरम ठहराएगा। हालेलुया। ये कलाम जो है यही आपका इंसाफ करने के लिए आपके सामने खड़ा होगा, और फिर जब आपसे पूछा जाएगा क्या आपने इस अल्फाज को सुना, आप कहेंगे नहीं, तो ये कलाम आपके खिलाफ गवाही देगा कि मैं इनके पास पहुंचा लेकिन इन्होंने अमल ना किया। तो इसलिए मैं बार बार इस कलाम को रिपीट करता हूं, क्योंकि ये नहीं कि खाने पीने से हमारा ईमान इतना ही कमजोर है कि हम कुछ खा लें तो हमारा ईमान टूट जाता है। खुदा ने भी एक ऐसा ईमान दिया है कि जिस ईमान के बाद हम कहते हैं, किसी दरख्त से कहते हैं, जैसे कलाम खुदा में लिखा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस शतूत से कह यहाँ से खड़कर फलानी जगह जा ठहर लग, तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। इस पहाड़ से कह के यहाँ से सिरक का फलानी जगह ठहर जा, तो वो तेरा कहना मानेगा। यानी कि राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा तो हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरेंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारा खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ईमान जो है वो इतना नाकस नहीं है जो ऐसे खाने पीने की चीजों से टूट जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कलाम खुदा में से, तो जब हमें शरीयत मिलती है, कलाम मिलता है, तो शरीयत हमें क्या सिखाती है? शरीयत कहती है कि बगैर खून बहाए गुनाह की मुआफी नहीं है। मूसा की शरीयत, जब खुदा ने शरीयत का ये कलाम हमें दिया, 10 अहकाम दिए, तो उस वक्त जब खुदा ने अपनी शरीयत नाज़िल की तो उस वक्त कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यानी कि अगर कोई झगड़ा होता, अगर किसी से कोई किसी की आंख जो है जाया हो जाती, तो उसके बदले उसकी आंख जो है उसे जाया करना पड़ता था। ये कानून था कलाम खुदा का। और दांत के बदले दांत का मतलब था कि अगर किसी झगड़े में किसी का दांत टूट जाता तो उसके एवज दूसरे शख्स का भी दांत तोड़ते, तो फिर वो शरीयत पूरी होती थी। तो अगर कोई हलाक हो जाता तो उस हलाकत के बदले हलाकत ही देनी पड़ती थी। लेकिन कलाम खुदा में जब हम मसीह की शरीयत में आते हैं, तो जब मसीह ने उस शरीयत को पूरा किया जहां लिखा है कि बगैर खून बहाए गुनाह की माफी नहीं है, तो वहां पर खुदा का बेअबरा यीशु मसीह खुद सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने अपना कीमती खून मेरे और आपके लिए बहा दिया, और उसने हमें उस सारे कफारा जो हमें साल बा साल अदा करना पड़ता था, एक ही बार सलीब पर देकर हमें उस कफारे की जरूरत ना रही, बल्कि उसने वो अदा किया और हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने का हक अता किया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या करना? खाना खिलाना। अगर प्यासा हो तो क्या करना? उसे पानी पिलाना। ऐसे करने से क्या होगा? क्या तू अपने दुश्मन को माफ कर देगा?
कलाम खुदा में लिखा है ऐसा नहीं है कि वो माफ किया जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। हालेलुया। ये है हमारे खुदा के कलाम की बातें। वो ये कहता है कि तू अपने दुश्मन को अगर भूखा हो तो उसे क्या कर, खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से क्या होगा, तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। ये नहीं कि उसका गम जो है या उसकी नफरत जो है वो बिल्कुल खुदा की नजर में खत्म हो जाएगी, तो खुदा आपके मोहब्बत करने से उससे प्यार करेगा। अगर उसके अंदर वही गुनाह है तो खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, जब उसके साथ हम ऐसे मोहब्बत से पेश आते हैं तो उसके सर पर क्या करते हैं, अंगारों का ढेर लगाते हैं, यानी कि उसका गम मजीद बढ़ जाता है। तो इसलिए जब हमारा खुदा बदला लेने के लिए तैयार है तो फिर हम कौन है जो एक दूसरे को मुजरिम ठहरा सकते हैं? क्योंकि हम तो दुआए रबानी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है, उसको जब हम पढ़ते हैं हर रोज जब भी हम जहां भी दुआ करें, चाहे घर में हो, किसी मीटिंग के अंदर हो, चर्च के अंदर हो, तो हम कहते हैं खुदा जिस तरह हमने दूसरे के कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। इसका मतलब हम अपनी जुबान से अपने आप को गुनहगार बना लेते हैं, क्योंकि हम तो इकरार कर रहे हैं। तो अगर तो हमने किसी को माफ किया है तो फिर वाकई खुदा भी हमें माफ करेगा। अगर हमने माफ नहीं किया तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। तो उसी माफी को लेने के लिए, देने के लिए जो खुदा आदम और हवा से गुनाह हो गया, जिसकी गुनाह की मजदूरी जो है मौत ठहराई गई, और जिसका कफारा जो है वो खून से दिया जाता था। जब उस आदम और हवा के गुनाह के सबब से मौत इस दुनिया में आई तो मौत हुक्मरान हो गई, और खुदा के पास जाने के लिए खून का कफारा देना, गुनाह का कफारा देना जो है वो जरूरी बन गया। तो साल बाद जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला चल पड़ा, यानी कि हर साल हम भी इसी तरह कुर्बानियां देते, हर साल इसी तरह जानवर ज़िबा करते और खुदा की हजूरी में ले आते, और उसका पता ही नहीं था कि वो मकबूल भी ठहरती हैं कि नहीं ठहरती। और कलामे खुदा में लिखा है कि वो कुर्बानियां जो हम गुजारते थे खुदा की हजूरी में, उससे हमारे गुनाह मिटते नहीं थे। क्या लिखा है, जो कुर्बानियां हम साल बाद इसी तरह गुजारते थे जिस तरह गैर कौम के लोग गुजारते हैं, तो उससे हमारे गुनाह जो है वो मिटते नहीं थे। क्या रहते थे, बरकरार रहते थे। कलामे खुदा में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि हमारे गुनाह मिटते नहीं थे, बल्कि जब भी हम साल बाद कुर्बानी गुजारते तो वो हमें याद आ जाते थे कि पिछले साल हमने ये गुनाह किए, उसके बाद हमने ये कुर्बानी की, तो इस साल हमारे गुनाह जो है वो फलाने फलाने गुनाह हैं। यानी कि तो गुनाह की मजदूरी क्या थी, मौत थी। तो मेरे अजीजों, आज हम मौत के नहीं बल्कि किसके फर्जंद हैं, जिंदगी के फर्जंद हैं। खुदा हमें मौत देने के लिए नहीं, खुदा हमें जिंदगी देने के लिए तैयार है। और उसके कलाम में ये लिखा है, इसको मैं तलावत करता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 14 से 22 आयत तक लिखा है। इस सबब से आए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से क्या करो, भागो। इस सबब से आए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से क्या करो, भागो। और फिर खुदा क्या कहता है कि मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं। ये कलाम जो आपसे हो रहा है, खुदा आपको क्या जानकर ये कलाम कर रहा है, अक्लमंद जानकर। क्योंकि खुदा ने जो अक्ल हमें दी है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वाकई हम अक्लमंद हैं, और खुदा हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें सरफराज करना चाहता है, वो हमारे खानदानों में, घरानों में खुशहाली और बरकत को लाना चाहता है। लेकिन अगर हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम फनाह होने वालों के साथ तैयारी कर लें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और खुदा हमें हलाक नहीं करना चाहता। अगर खुदा हलाक करना चाहता तो वो कुर्बानियां चलती रहती। आज हम भी तैयार होते कि हमने भी ये बचना लेना, ये कटा लेना, ये पुराना जानवर लेना, ताकि हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी करें ताकि हमारा गुनाह जो है वो मिट जाए। लेकिन आज खुदा ने क्या किया, हमें आजाद
किया है, और उसने इसीलिए किया है ताकि अल्लाह को हम गुलामी के जुए में ना जुटे, बल्कि हम आजादी के फर्जंद बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसलिए अमाल 4 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि किसी दूसरे के वसीले नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले हम नजात पा सके। नजात कहां पर है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि मैं अक्लमंद चाल कर तुमसे कलाम करता हूँ, और जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत है, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी रोटी में शरीक होते हैं। जो हम रोटी तोड़ते हैं, यानी कि शायर बानी की मीटिंग है, तो क्या है? एक रोटी होती है, उसको हम तोड़ते हैं, उसको हम ये समझकर खाते हैं कि वो क्या है? मसीह का बदन है। अंगूरों का शीरा जो है, उसको हम ये कहकर पीते हैं कि ये मसीह का वो बेशकीमती खून है जो सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए बह गया। तो जब हम उसमें शामिल होते हैं, ये हम अपने चर्च की मिसाल ले लें, तो यहाँ पर इस चर्च के अंदर कम से कम जो है हम 25 से 30 लोग तो होंगे जो उसमें शामिल होते हैं, इतने तकरीबन है। तो जब हम उसमें शामिल होते हैं तो एक ही रोटी है, एक ही प्याला है, तो कितने लोग शामिल होते हैं? 25 से 30 लोग उसमें शामिल होते हैं। जब उसमें शामिल होते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक बदन तैयार हो जाता है, और वो बदन किसका है? खुदा के बेटे यीशु मसीह का। हालेलुया, जोरदार तालियां उसके लिए। इसी तरह कलाम हमें क्या सिखाता है? कलाम कहता है जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं है? अब कलाम ये हमसे मुखातब है कि क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं है? फिर लिखा क्या है? बस मैं क्या ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती है, शैतान के लिए कुर्बानी करती है, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावन के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? अब ये कलाम हमसे सवाल करता है, क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिला रहे हैं? क्या हम कहते हैं कोई बात नहीं, जो चीज आती खाए जाए? हम पूरा साल गुजारते हैं, तो अगर पूरे साल के अंदर हमें किसी वक्त ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि 1 या 1.5 महीना बगैर गोश्त खाए भी हम निकाल ले, तो हम मर नहीं जाते, बल्कि क्या है? हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि ना तो खाना हमें जो है उसके साथ हमारा जिंदगी का, बेशक वो खाना हमें कुव्वत देता है, लेकिन उससे ज्यादा कुव्वत हमें कहां से मिलती है? खुदा के कलाम से। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, जब आसमाने वाले ने पास आकर कहा कि फरमा ये पत्थर जो है ये रोटियां बन जाए। जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात वाक़ा किया, तो आखिरकार यीशु मसीह को क्या हुआ? भूख लगी। तो आसमाने वाले ने क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के ये तेरे लिए क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि बन जाए? यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो इस खुदा के कलाम के साथ तल्लुक रखती है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम जो है यही हमें जिंदगी बख्शता है। ये कलाम जो है यही हमें कुव्वत देता है। हम अगर रोटी ना भी खाएं, हम कुछ ना करें, लेकिन अगर कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा हमें जिंदगी देने के लिए तैयार है। वो हमें मरने कभी नहीं देगा। मेरे अजीजों,
हम देखते हैं हवा के परिंदों पर गौर करें, जो जमीन के नीचे ऐसे जानवर रहते हैं, क्या खुदा उन्हें खुराक मुहैया नहीं करता? क्या हवा के परिंदे जो हैं, कई बार बारिशें आ जाती हैं, 4-4, 5-5 दिन बारिशें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारा खुदा उन्हें भूखा नहीं रहने देता, बल्कि कहीं ना कहीं उनका इंतजाम करता है। तो क्या खुदा जिस इंसान के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने क्या किया, जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने आदम के साथ अपने दिल को क्या किया? लगा लिया। हालेलुया। खुदा ने क्या किया? आदम के साथ अपने दिल को लगा लिया, उसके साथ राब्ते में हो गया, रफाकत में रहा। और लिखा है कि वो हर रोज ठंडे पैर उतरता और आदम से क्या करता था? बातें करता था। वो इतना करीब हो गया इंसान के, लेकिन इंसान की फितरत जो है वो गुनाह की तरफ थी। इसलिए इंसान जो है, जो मट्टी से लिया गया था, वो मट्टी की तरफ ही लौटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने खुदा की मोहब्बत को ना जाना। मेरे अजीजों, आज भी खुदा हमें सब कुछ दे रहा है। कभी आप आजमा कर देखें, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता, कई बार पहनने के लिए कुछ नहीं होता, कई बार उनकी कई ऐसी जरूरतें हैं, रहने के लिए घर नहीं है। आप देखें बाहर निकलकर तो बड़े अजीब हालात लोगों के नजर आएंगे, लेकिन हम मुबारक है क्योंकि खुदा हमें कभी भी ऐसे माहौल में नहीं जाने देता, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मुहताज हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान किया है। उसके बेटे यीशु मसीह का खून जो सलीब पर बहा है, वही हमारी नजात का सबब है, बरकत का सबब है। इसलिए हमें ये 2 या 3 दिन का गोश्त जो हम खा लेते हैं कई बार बातों में आकर, बहुत सारे खादम भी इस बात पर है कि खुदा बाप बेटा रू पाक पढ़ो तो सब पाक साफ। अगर ऐसा है तो फिर सारी चीजें खाने के लिए, फिर नशावर चीजें जो है उनके ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर जो भी हराम चीज है उसके आप ऊपर बाप बेटा, क्या बाप बेटा रू पाक के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो जो नहीं उसको भी मुहैया करता है। और जो जहां हम हमारी सोच और अकल कम पड़ जाती, वहां ये तीनों चीज जब मिल जाती हैं, खुदा का रूह जब काम करता है तो वो सारे काम कर देता है। जहां पर हमें उम्मीद नहीं होती, खुदा हमें नई उम्मीद की किरण वहां पर नजर ले जाता है हमारी नजर को। तो मेरे अजीजों, जब खुदा हर चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है, तो फिर अगर बाप बेटा पाक पढ़ने से नापाक चीज पाक हो सकती है, तो फिर सब कुछ हमें खाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजों के ऊपर हम पढ़कर खा सकते हैं। लेकिन कलाम ऐसी तालीम हमें नहीं देता, क्योंकि लिखा है कि पाक चीजें अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको, ऐसा ना हो कि वो खाकर पलट कर तुम्हें फाड़े। यानी कि इसका मतलब है कि खुदा ने हमें इशारा दे दिया है कि हमें अच्छाई और बुराई की पहचान करनी है। हमें जो अच्छी चीजें हैं उनको जानना, हमें पाक चीजों और नापाक चीजों के फर्क को जानना है। और पाक चीजें जो है वो खुदा हमें खाने के लिए खुशी के साथ कहता है कि खाना जो है वो पेट के लिए और पेट खाने के लिए बनाया गया है। तो मेरे अजीजों, हमारा ईमान जो है वो कामल होना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई खाता भी ऐसी चीज, तो हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि हम एकदम अपने ईमान के ऊपर ठोकर लगा लें। हम देखते हैं रोजे जब आते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के, तो वो बड़ी सख्ती कर देते हैं खाने पीने की चीजों के। तो क्या उनका सवाल क्या होता है अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने तो रोजा रखा दूसरे, वो कहते हैं कि नहीं, अगर ये रोजा ये खाता है तो हमें भी इसकी तरफ देखकर भूख लगती है, तो इसलिए हमारा रोजा जो है वो रोजा नहीं रहता, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। तो हमारा ईमान ऐसा नहीं है जो देखने से कमजोर हो जाए, जो छूने से कमजोर हो जाए, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा ईमान दिया है कि जिस ईमान से जो कुछ हम मांगते हैं खुदा आसमान को खोलकर वो मुहैया करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसके कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर कलाम खुदा में लिखा है, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मुफीद नहीं, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज से कुछ ना पूछो।
یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 23 سے 25 آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں پر کلام ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے، جو ہم کسائیوں کی دکانوں پہ، کسابوں کی دکانوں پہ جاتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ وہاں سے جو کچھ تم خریدتے ہو اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ تم رقم دے کر اسے خرید رہے ہو۔ لیکن دینی امتیاز سے ان سے نہ پوچھو، کیونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسے بھی لوگ ہیں جو اکٹھا کر کے تو بعد میں پھر قربانی کا گوشت پھٹے پہ بھی لگا دیتے ہیں، کئی بار ایسا دیکھنے میں ہمیں آیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کلام کہتا ہے کہ جو کچھ تم قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہوا دیکھتے ہو، اگر وہ تم خرید کر لاتے ہو تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے، تم کھا سکتے ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب خدا ہمیں یہ قربانی ہم کرتے تھے، ہمیں حکم ملا تھا کہ آپ یہ قربانی کرنا، تو اس وقت اس کے لیے ٹائم مقرر تھا، اور وہ ٹائم کیا تھا؟ 3 دن کا ٹائم تھا۔ 3 دن تک ہم اس قربانی کے گوشت کو کھا سکتے تھے، اور جو 3 دن سے لوگ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے تھے، اس کا ایک الگ سا انداز تھا۔ جب قربانی کرتے تھے تو لوگ اس حساب سے رکھتے تھے کہ ان کے 3 دن کے لیے وہ پوری ہو، اور جو بچ جاتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو جو زیادہ رکھ لیتا تھا اپنے کھانے پینے سے زیادہ، بھی چلو ایک دن اور نکل آئے، تو لکھا ہے کہ رات کے پیروں میں جب وہ اگلی رات میں داخل ہوتا تھا تو اس میں کیڑے پڑ جاتے، وہ خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا حق ہے وہی میرے لوگ اس میں شامل ہوں۔ تو آج اس حصے کو کیا کیا جاتا ہے؟ کئی بار ہم دیکھتے ہیں 2 ماہ تک، 6 ماہ تک جو ہے وہ فریز کر کے وہ کھاتے رہتے ہیں، لیکن خراب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے۔ ہمیں اپنے خدا کی مرضی کو جاننا ہے، ہمیں اپنے مذہب کے اندر رہنا ہے، ہمیں اپنے کلام کے، خدا کے کلام کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ ہم کسی قوم کے، کسی قبیلے یا کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں اپنے خدا کے کلام کے لیے، ہمیں اپنے خدا کے کلام کو ماننا ہے، اس کی باتوں کو ماننا ہے، جس کا جہاں پر ایمان ہے اس کو لگا رہنے دے، لیکن اپنے ایمان میں اتنی مضبوطی لے کر آئیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کریں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ سو خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سر کو جھکا کر خدا پاک خدا کا شکر ادا کریں گے۔ ہاللویا، کلام خدا کے لیے شکر گزاری کی دعا کرنا شروع کریں سب لوگ۔ اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آج کے کلام مقدس کی دعا کریں گے، تاکہ آج جو بھی کلام پڑھا گیا ہے ہماری زندگی میں باعث برکت کلام ٹھہرے، اس کے وسیلے سے ہم 60% نہیں بلکہ 100 گنا فضل میں بیکار کر سکے۔ اس طرح ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور بہنینا کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ تو اس لائق ہے کہ تیری حاضری میں جھکا جائے، تجھے سجدہ کیا جائے گا۔ ہم شکر گزار ہیں آج کے کلام کے لیے خدا کہ آج کا کلام ہماری زندگی میں بخشا۔ یہ کلام خدا تیری تمجید ہو پیاری یسوع، آج خدا ہم تیری ہیکل میں بیٹھے ہوئے تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدے کے لائق ہے۔ آج خدا ہم تو ہمارے درمیان میں ہے، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اور خدا ہم یہ کلام جڑ پکڑے اور خدا ہم 100 گنا پھل لانے والا بن جائے پیاری یسوع۔ تیرے شکر گزار ہیں خدا ہم جس طرح آنے جانے میں مدد کی، جس طرح تیرے لوگ تیرے گھر میں آئے ہیں خدا ہم اسی طرح تو جاتے وقت مدد اور حفاظت کرنا، ان لوگوں کو خدا ہم اپنا ڈر، اپنا خوف ان کی زندگی میں پیدا کرنا، خدا ہم یہ محسوس کریں کہ تو واقعی خدا ہم زندہ خدا ہے اور تیرے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں میرے خدا ہم تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ خدا ہم خدا اس ساز آواز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، خدا ہم ان کو اور زیادہ برکت دینا، ان بچوں کے گلوں کو خدا ہم چھونا بڑا مسا کرنا، تاکہ خدا ہم تجھ میں اور تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں، تو اپنے قدر کو چھونا اور برکت دینا تاکہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھا سکے۔ خدا ہم خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، خدا جو ہماری زندگیوں میں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یسوع جی کے نام سے جاتی رہیں اور ہمیں رہائی بخشنا، آزادی بخشنا، تاکہ خدا ہم آزادی کے ساتھ تیری پرستش کر سکے، تیری عبادت کر سکے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید
चीज़ हो, ये सब कुछ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं और तू हमें बख्श दे। आमीन। आहिस्ता से हम अपनी बात का आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दरमियान अपने लगे रुझाने शुक्रगुजारी खुदा की हज़ूर में पेश करेंगे। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨੇ ਗੁਨਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਪਤਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨੇ ਗੁਨਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਪਤਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर खुदा का शुक्र अदा करें जो बातों में सच्चा है, आदल और वफादार है। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा जो सारे माहौल में हमारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी आवाज़ जो पहाड़ों के सीनों को चीर देती है, हम ऐसी आवाज़ के लिए खुदा तुझे मुबारक कहते हैं और हम तेरी सताइश करते हैं क्योंकि तू भलों के साथ भलाई पैदा करता है। खुदावंद आज के सारे मीटिंग के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू अपने लोगों के साथ रहा। खुदावंद खुदा जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा इस सब के लिए तेरी सताइश करते हैं और जो कलाम का बीज बोया गया है खुदावंद ये बहुत सा असर दिखाए और खुदावंद ये जिंदगियां आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर और मजबूत हो, ये रूह से भरे, आग से भरे, शोरों से भरे, इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिलेंगे। खुदा पाक करो, मैं सारी आसर जमात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
इसी तरह यहोवा पाक खुदा हम जितने YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं, जॉन ओलिफाई टीवी पर और पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री पेज पर, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को जाए उनकी यीशु के नाम से। हर तरह बीमारी के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम। बेऔलाद औलाद जैसी बरकत को रिसीव करें, और दुखों में जो पड़े हैं वो खुशी और शादमानी को हासिल करें यीशु के नाम से। और यहोवा पाक खुदा हम तमाम मुकद्दसीन के लिए, खातमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इसके वज़ीर आला, वज़ीर आज़म के लिए और पाक आर्मी के लिए, और ये खुदा हम तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस मुल्क की सरहदों की खुदा हम तेरा पाक रूह हिफाजत करे, ताकि इस मुल्क से बड़े बड़े सूरमा निकले, दूसरे मुल्कों में जाएं और लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का बायस ठहरे, और ये मुल्क तेरे कुदरत के कामों के लिए खुदा मिसाली मुल्क ठहरे और जलाली यीशु नाम पाए। खुदा तू बड़ी बरकत देना इस हदीये नसरानी के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया। तेरी बरकत चाहते के खित्तों को भरना, जरूरतों को पूरा करना, 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे मसीह खुदा के वसीला से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा रखते रही है। आमीन।